New chapter, The Enemy by Pearl S. Buck. The Enemy, written by Pearl S. Buck, is a heart-rending portrayal of the conflict between a man's heart and mind. It tells us about how people can help enemies on human grounds. To hate our enemy is natural and justifiable, especially during war. And this story beautifully depicts how a human being rises above his prejudices to help a wounded enemy. In this chapter, the author stresses on the fact that humanity requires one to overcome prejudices and hatred, especially against one's enemies. Through this chapter, the author conveys the message that humanism transcends all man made prejudices and barriers. So, here the writer beautifully depicts about the human emotions, and let's know something about our author. Birth June 26, 1892 in Hillsborough, West Virginia. Parents Southern Presbyterian missionaries stationed in China, and lots of awards the writer has won. You can see the prestigious awards. And by the time of her death in 1973, Pearl published over 70 books, novels, collections of stories, biography and autobiography, as well as like poetry, drama, child's literature and translation from the Chinese. So, let's begin with our chapter, The Enemy by Pearl S. Buck. I have already told you about the writer, and the major character in this story are Dr. Sadao, a Japanese doctor trained by Americans, dedicated surgeon, doctor, kind, prejudiced against the white man. Then Hannah, she is the wife of Dr. Sadao. They met in America and became friends. Tom, he is an American prisoner of war, strong willpower, General Takema. He is a famed Japanese war hero. He is selfish and careless. Then Yumi, the servant who looked after Dr. Sadao and Hannah's children, and she loves children, loyal to the country. Then domestic servants, loyal to the country and prejudiced against the white men. So, let us begin with our story. Dr. Sadao Hoki's house was built on spot of the Japanese coast, where as a little boy he had often played. So, here the writer mentions about the Dr. Sadao's house, that is on Japanese coast. जापानीज़ कोस्ट पे था डॉक्टर सदाव का घर, और बचपन में डॉक्टर सदाव वहाँ पर खेला करता था. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अप ऑन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइन विद बेंट पाइन्स. और उनका घर जो है बीच पर था और पाइन ट्रीज से सराउंडेड था. एंड एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइंब द पाइन्स सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट एज ही हैड सीन meant to do in South Seas when they climbed for coconuts. So उसने पाइन ट्रीज पे चढ़ने की कोशिश करी, बेयर फीट, नंगे पाँव वो उन पाइन ट्रीज को क्लाइंब करने की कोशिश करता था. और वो ऐसा उसने कुछ साउथ सीज में लोगों को देखा था कोकोनट तोड़ने के लिए जिस तरीके से वो चढ़ते थे, वो उनको कॉपी कर कर पाइन ट्रीज पे चढ़ने की कोशिश करता था. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, those islands yonder, they are stepping stones to the future for Japan. So जो फादर है वो उसको वहाँ आइलैंड पे खेलने के लिए लेकर जाता था, और वो अपने बच्चे से जो है बहुत ही समझदारों वाली बात करता था, और वैसे मजाक नहीं करता था जैसे कि नॉर्मल फादर मजाक करते हैं. और वो पत्थरों को देखकर कहता है कि ये स्टेपिंग स्टोन्स टू फ्यूचर फॉर जापान है. और जब सदाओ उनसे पूछता है कि वे शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, तो कहाँ ये पत्थर हमें लेकर जाएंगे, तो डॉक्टर सदाओ के फादर जो है वो रिप्लाई करते हैं, हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट. और वो कहते हैं हमें मुझे नहीं मालूम है ये पत्थर हमें कहाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं हम पर डिपेंड करती हैं कि हम अपने फ्यूचर को कहाँ पर ले जाना चाहते हैं.
Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. और वो जो स्टेपिंग स्टोन्स और जापान का फ्यूचर है, ये बात जो है डॉक्टर सदाओ ने लाइटली नहीं ली. जैसे वो अपने फादर की हर बात बहुत ही ज़्यादा सर माथे पर रखते थे. एंड ही यूज टू गिव लॉट्स ऑफ रिगार्ड टू हिज फादर्स टॉक. तो वो बात भी उसने अपने दिमाग में बिठा ली. हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम but who spent infinite pains upon him, who was his only son. और सदाओ जो है वो उनका ओनली सन था और नॉर्मल फादर की तरह वो उसके साथ मजाक नहीं करते थे, खेलते नहीं थे, बट उन्होंने बहुत पेन्स ली थी उसके लिए लाइफ लॉन्ग. जैसे कि सभी माता पिता अपने बच्चों की परवरिश में जो है कोई कमी नहीं छोड़ते, तो वैसे ही डॉक्टर सदाओ के फादर ने भी नहीं छोड़ी और वो अपने फादर को बहुत रिगार्ड करते थे और वो ओनली सन थे. सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. डॉक्टर सदाओ अभी डॉक्टर नहीं बने हैं, तो इसलिए मैं सदाओ ही रेफ़र करती हूँ कि सदाओ के फादर जो हैं वो एजुकेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर थे. जैसे कि हमारे सबके पेरेंट्स को क्या चाहिए हमसे, सिर्फ एजुकेशन, कि हम अच्छा पढ़ लिख जाएं. और सदाओ के फादर ने उसको पढ़ने के अमेरिका अमेरिका भेजा एट द एज ऑफ 22, जहाँ पर उन्होंने सर्जरी और मेडिसिन की सारी नॉलेज जो है ग्रास्प करी. एंड व्हेन ही केम बैक, और अपने फादर के मरने से पहले वो एक फेमस जो है फेमस हो चुके थे एज अ सर्जन, एज अ साइंटिस्ट, डॉक्टर सदाओ, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent aboard with the troops. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. और डॉक्टर सदाओ को दो वजह थी ट्रूप्स के साथ नहीं भेजने की, क्योंकि लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वॉर चल रहा था, और ट्रूप्स जो हैं गए हुए थे, बट डॉक्टर सदाओ को उनके साथ इसलिए नहीं भेजा गया. पहली वजह कि वो एक सर्जरी पे प्रैक्टिस कर रहे थे, एक डिस्कवरी पे प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है हमें जब चोट लग जाती है तो हमारे निशान रह जाते हैं, वैसा निशान ना रहे ताकि वो टोटली क्लीन हो जाए, तो उसके ऊपर वो अपनी रिसर्च वर्क कर रहे थे. एक वजह ये थी उन्हें ना भेजने की. और दूसरी वजह वहाँ के जो जनरल हैं वो बीमार थे और मे बी उनको कोई सर्जरी की या इंस्टेंट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े या मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, इसीलिए सदाओ को जापान में ही रखा गया. Clouds were rising from the ocean now, the unexpected warmth of the past few days. At night, drawn heavy fog from the cold waves. Sadao watched mists hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. In a few minutes, fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with 2 children. अब यहाँ पर जो है वेदर कंडीशन की बात करी गई है. पूरा जो एटमॉस्फेयर है ओशन के अराउंड बहुत ही मिस्टी है, फॉगी है, बीच के आसपास जो है पूरा फॉग है, और उसके घर में जो है हैना जो उसकी वाइफ है और 2 बच्चे अंदर वेट कर रहे हैं. और डॉक्टर सदाओ जैसे ही एंटर करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं एंटर करने के लिए, तो उनके सामने उनकी वाइफ किमोनो डालकर जो है वो सामने आती हैं. बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू वूलन हायोरी ओवर हर किमोनो. और हायोरी और किमोनो दोनों ही जापानीज़ ड्रेस हैं और वो जापानीज़ तरीके से ही ड्रेसअप होती थी घर पर. है ना, जो कि डॉक्टर सदाओ की वाइफ हैं. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिम हिज एज ही स्टूड, स्माइल्ड एंड सेड नथिंग. और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ था
डॉक्टर सदाव और हैना ने, और बहुत ही अच्छे से वो एक दूसरे के साथ ट्रीट करते थे और एक दूसरे की कंपनी को एन्जॉय करते थे और इंटीमेट रिलेशनशिप था. He had met Henna in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. His father would never have received her unless she had been pure in her race. अब जैसे हमें पहले ही पढ़ लिया है कि डॉक्टर सदाव जो है अपने फादर को बहुत रिगार्ड करते थे, और जब वो पहली बार हैना से मिले तो हैना उन्हें अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने ये श्योर किया कि वो जापानीज़ है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हैना जापानीज़ नहीं हुई तो उनके फ़ादर उनकी शादी के लिए कभी भी येस नहीं करेंगे, और वो अपने फ़ादर की कोई भी बात टालते नहीं थे. तो एकदम से ही जो है उन्होंने हैना को प्रपोज़ नहीं किया, या एकदम से ही वो उसके साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो गए जब तक कि उन्हें ये श्योर नहीं हो गया कि हैना एक ट्रू जापानीज़ है. He wondered often whom he would have married if he had not met Henna, and by that luck he had found her in the most casual way. By chance, literally, at an American professor's house. The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their few foreign students, and the students, though bored, had accepted this kindness. Sadao had often told Henna how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. और डॉक्टर सदाव जो है वो हैना से बहुत ही कैजुअल तरीके से अमेरिकन प्रोफेसर के घर मिले. अमेरिकन प्रोफेसर और उनकी वाइफ जो है बहुत ही काइंड पीपल थे, और वो फॉरेन स्टूडेंट्स को बहुत जो है सपोर्ट करते थे, जबकि फॉरेन स्टूडेंट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते थे, बोर होते थे, बट स्टिल वहाँ पर जाते थे. और डॉक्टर सदाव वहाँ जाना नहीं चाहते थे प्रोफेसर हार्ले के घर पर, क्योंकि वहाँ के रूम्स बहुत छोटे थे, उनको सुनने में आया था, और खाना भी बहुत अच्छा नहीं था. फूड वॉज सो बैड एंड द प्रोफेसर वाइफ वॉज सो वॉल्यूएबल. प्रोफेसर की वाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव थी. तो ये 3 वजह थी कि वो कुछ स्टूडेंट्स भी और उस टाइम पे सदाव भी अवॉइड कर रहे थे, बट स्टिल ही वेंट देयर. बट ही हैड गॉन एंड देयर ही फाउंड हैना, new student, and had felt he would love her if it were at all possible. और वहाँ पर वो हैना से मिले, और उन्होंने हैना को देखते ही ये सोच लिया कि वो उससे प्यार करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो. नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म्स. और अब फिर वापस हम प्रेजेंट की तरफ आते हैं. तो वो उस दिन की सिचुएशन, जिस दिन पे उन्हें स्ट्रेंजर मिला था, तो उस दिन जो है वो बाहर वेरांडा में खड़े थे, और ही कुड फील हैनाज आर्म. बहुत प्यार से जो है वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, इवन दो दे हैड बिन मैरिड ईयर्स इनफ to have 2 children, for they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Henna had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. और एकदम से ही जो है वो हीडलेसली एक दूसरे के साथ प्यार में नहीं पड़े थे, और अपनी पढ़ाई पूरी फिनिश करी, और फिर उसने अपने फादर को जो है हैना से इंट्रोड्यूस कराया. और जब फादर ने येस कह दी तो उन लोगों की शादी जो है, उन हैना और सदाव की शादी ओल्ड जापानीज स्टाइल में हुई, क्योंकि फादर जो है बहुत ही ज़्यादा पैट्रियाटिक थे और अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते थे, अपने कल्चर से बहुत प्यार करते थे. और ये दोनों बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ जो है लीड कर रहे थे. एंड उस दिन वो बाहर खड़े. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट. इट वॉज अ मैन. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन. फ्लंग, इट सीम्ड, टू हिज फीट by a breaker. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head. Then the curled mist hid him again. अब अगर उस दिन की बात करें तो उनको दूर से जो है कोई दिखा, आउटलाइन दिखी उस मिस्ट में, उस फॉग में, और उन्हें समझ में आ गया कि वहाँ कोई आदमी है जिसको लहरों ने फेंका है ओशन से बाहर.
और वो स्टैगर करते हुए, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और हाथों और नी पर क्रॉल कर कर वो आगे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है विद हिज आर्म्स एंड हिज हेड, एंड देन द कर्ल मिस्ट हिड हिम अगेन। और फिर जब वो इतनी दूर से उसे देख रहे हैं उतनी देर में फॉग ने उसे पूरा कवर अप कर लिया, मिस्ट ने उसे पूरा कवर कर लिया। एंड हु इज़ दैट, हैना क्राइड। हैना को एकदम से लाइक क्यूरियोसिटी हुई कि वो कौन है। She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. जैसे हम कभी दूर से अगर हमें कोई अजनबी दिखता है या कुछ डेंजरस सिचुएशन या लाइक अननेचुरल सिचुएशन दिखती है तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, उसी तरीके से है ना ने एकदम से डॉक्टर सदाओ का हाथ झटका और वो कोशिश कर रही थी इतनी दूर से देखने की कि वहाँ पे कौन है। Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. Then they saw him fall on his face and lie there. A fisherman perhaps, Sadao said, washed from his boat. He ran quickly down the steps and behind him Henna came, her white sleeves flying. अब जो है दोनों जब बात कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि कोई फिशरमैन होगा जिसको जो है जो अपनी बोट से गिर गया होगा और लहरों की वजह से वो हमारे घर के बाहर यहाँ पर आ गया, उन लहरों ने उसको यहाँ फेंक दिया है। वॉश फ्रॉम हिज बोट एंड ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड, और वो दोनों उसकी तरफ तेज़ी से भागे। डॉक्टर सदाओ और हैना came, her white sleeves flying. A mile or two away on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast. आसपास जो है वहाँ पर फिशिंग विलेजेस थे और इस कोस्ट पे जो है बहुत लोग ज़्यादा आते जाते नहीं रहे थे क्योंकि यहाँ ये कोस्ट जो है वो काफ़ी डेंजरस था, यहाँ पे रॉक्स जो है वो काफ़ी पॉइंटेड थे। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, बहुत ही ज़्यादा नोकीले पत्थर थे इस कोस्ट पे, तो ज़्यादातर जो फिशरमैन या लोग आते जाते उस जगह पे नहीं थे। Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. और उन्हें लगा कि पता नहीं कैसे ये आदमी जो है यहाँ तक आ गया है लहरों की वजह से, और डेफिनेटली इसको बहुत चोटें लगी होंगी और बिल्कुल बुरी कंडीशन में होगा, वो उन्होंने टेक इट फॉर ग्रांटेड ही ले लिया था। They saw when they came towards him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. ही इज़ वुंडेड। और उन्हें जो है जब उसको ध्यान से देखा तो देखा कि जो वहाँ पर मिट्टी भी है वो लाल रंग की है, तो उन्हें समझ में आ गया कि वो बहुत बुरी तरीके से वुंडेड है। ही इज़ वुंडेड, सदाओ exclaimed. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand, an old cap stuck to his head, soaked with sea water. He was in wet rags of garments. Sadao stopped Henna at his side and turned the man's head. They saw the face. और उन्हें समझ में आ गया कि ये मैन मोशनलेस था और बुरी तरीके से मुंह के बल जो है गिरा हुआ है और उसकी जो पूरी बॉडी है वो सोक्ड है सी वाटर में, और उसके कपड़ों के जो है बिल्कुल चीथड़े हुए हुए हैं, वो बिल्कुल रैग्स में हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन में है। दोनों जो है सदाओ और हैना उसको बहुत ही हैरानी से देख रहे हैं, और जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो एकदम से हैना बोली, अ वाइट मैन, हैना whispered. Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. और वो मैन जो है वो मोशनलेस है, अनकॉन्शियस है, और चेहरे से उन्हें समझ में आ गया कि वाइट मैन है, उसके गोल्डन हेयर है, उसकी बियर्ड भी है गोल्डन, और इससे उसकी बियर्ड की कंडीशन और उसके बालों की कंडीशन से समझ में आ गया कि वो बहुत टाइम से उसको हेयर कट नहीं मिला है और वो टोटली अनकॉन्शियस था। उसको नहीं समझ आ रहा था कि डॉक्टर सदाओ और हैना उसके लिए कुछ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं उसके साथ। नाउ सदाओ remembered the wound, and with his excerpt fingers he began to search for
it. Blood flowed freshly at his touch on the right side of his lower back. Sadao saw that a gun wound had been reopened. The flesh was blackened with powder. Sometime not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was a bad chance that the rock had struck द वुंड. और जब डॉक्टर सदाओ ने उसको बहुत ध्यान से देखा तो उसके एक्सपर्ट फिंगर्स ने उसकी बॉडी को टच कर रहा तो वो समझ आ गया कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से वुंडेड है. ब्लड जो है प्रोफाउंडली फ्लो कर रहा है. उसके टच करने से और ज़्यादा जो है वो तेज़ी से बहने लगा और उसको जो समझ आ गया कि ये तो इसको गन से जो है चोट लगी है और ये पानी और रॉक्स की वजह से ये वूंड जो है वो रीओपन हो गया है और वो फ्लैश जो है वो बहुत ही डार्क हो गई है उसके आसपास की. ओह हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हैना विस्पर्ड अगैन इन अ सोलमन वॉइस. हैना बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड वुमेन थी और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी कि इतना ब्लड देखकर और कंसर्न था हैना को उस स्ट्रेंजर के लिए. द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ completely, and this time of the day no one came by. The fisherman had gone home. Even the chance beachcombers would have considered the day at an end. What shall we do with this man? Sadao muttered, but his trained hands seemed of their own will to be doing what they would to stanch the fearful bleeding. अब डॉक्टर सदाओ ने को मेजर कंसर्न था कि उस टाइम पर जो है वो मिस्टी सराउंडिंग्स थी और कोई भी आ जा नहीं रहा था. फिशरमैन भी अपने घर की तरफ चले गए थे. बीच कॉम्बर्स होते हैं जो बीच से चीज़ें इकट्ठे करते हैं, वो भी अपने घर चले गए थे और प्रोबेबिलिटी किसी के भी वहाँ आने की नहीं थी. और डॉक्टर सदाओ जो है वो मटर कर रहे थे कि अपने ट्रेंड हैंड से, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन थे, बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर थे, तो वो ब्लीडिंग को रोकना चाह रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज़ है उसके आसपास जिससे वो उसकी ब्लीडिंग रोक सकें. द वुंड्स विद द सी मॉस दैट स्ट्रूड द बीच. द मैन मून्ड विद पेन in his stupor, but he did not awaken. The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself. Now the bleeding was stopped for the moment. He stood up and dusted the sand from his hands. Yes, undoubtedly, that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down the motionless man. अब सी मॉस से जो है वो ब्लीडिंग रोक दी गई. डॉक्टर सदाओ ने जो है ब्लीडिंग रोकी. द बेस्ट थिंग दैट ही कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी. और वो सदाओ अपने आप से ही बातें कर रहा है और कह रहा है कि इस वुंडेड पर्सन को या स्ट्रेंजर को हमें पानी में वापस फेंक देना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्लीड कर रहा है ना. और वाइट मैन है और वो बहुत ही डरे हैं इस बात से कि वो उनका एनिमी है. येस अनडाउटेडली दैट वुड बी द बेस्ट. और है ना उसकी बात में येस कंसर्न देती है कि हाँ हमें इसे पानी में फेंक देना चाहिए. बट स्टिल आउट ऑफ ह्यूमन कंसर्न, क्योंकि वो मोशनलेस है, तो है ना जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और वो देखती है उसकी तरफ बहुत ध्यान से. If we sheltered a white man in our house, we would be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadao said. The kindest thing would be to put him back into the sea, Hannah said, but neither of them moved. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. अब ये दोनों को लगता है कि इस वाइट मैन ने तो एनीवेज मरना ही है. अगर हम इसे अरेस्ट करा देंगे तो ये तो प्रिजनर ही है और इसे जो है वो मार ही देंगे. और अगर हम इसे पानी में फेंक देते हैं तो एनीवेज जो है ये फिर भी मरेगा. तो बेटर यही है कि इसे पानी में फेंक दिया जाए और यही इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी, बहुत ही काइंड बात होगी, क्योंकि प्रिजनर के साथ जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता. उनके साथ बहुत ही ब्रूटलिटी से जो है टॉर्चर किया जाता है. उनको ब्रूटल ट्रीटमेंट मिलता है उन्हें.
दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्जन अपॉन द इनर्ट, और बात कर रहे हैं उसको पानी में वापस फेंकने की, बट स्टिल अंदर से जो है दोनों ही इस बात के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। और उससे भी बड़ी बात, डॉक्टर सदाव खुद एक डॉक्टर हैं और उनके सामने उन्हें दिख रहा है एक पेशेंट। व्हाट इज़ ही? Hannah whispered. There is something about him that looks American, Sadao said. He took up the battered cap. Yes, they're almost gone, was the faint lettering. A sailor, he said, from an American warship. He spelled that out. US Navy. The man was a prisoner of war. और उसकी एक टोपी से जिस पे लिखा था US Navy, तो उनको समझ में आ गया कि ये अमेरिकन है और ये प्रिजनर ऑफ वॉर है. he has escaped, Hannah cried softly, and this is why he is wounded. और उसने हैना को लगा कि इसने जो है भागने की कोशिश करी और इसीलिए जो है ये wounded है. इसको जो है जापानीज़ पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश करी होगी, इसको पकड़ने की कोशिश, और उस भागम दौड़ी में इसे चोट लगी. इन द बैक, सदाव एग्रीड. और ये कंफर्म कर रहा है क्योंकि गोली पीछे से लगी है तो डेफिनेटली ये भाग रहा था और इसको रोकने के लिए गोली चलाई गई. दे हेसिटेटेड, लुकिंग एट ईच अदर. देन हैना सेड विद रेजोल्यूशन, कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी? इफ़ आई एम एबल, आर यू? सदाव आस्क्ड. और एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या हम इसे पानी में वापस फेंक सकते हैं? सदाव कहता है अगर मैं एबल हूँ तो क्या तुम रेडी हो इसको पानी में फेंकने के लिए? No, Hannah said, but if you can do it alone. Sadao hesitated again. कहते नो, आई गेस मैं भी एबल नहीं हूँ अकेले इसको पानी में फेंक देने के लिए. और सदाव फिर हेसिटेट करता है. द स्ट्रेंज थिंग इज़, ही सेड दैट इफ़ द मैन वर होल आई could turn him over to the enemy. All Americans are my enemies and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded. वो कहता है कि अगर ये ठीक ठाक सा होता तो मैं इमीडिएटली इसको जो है पुलिस के हाथ दे देता, क्योंकि हमारा एनिमी है और सारे अमेरिकन हमारे एनिमी हैं, बट ये वुंडेड है. अब यहाँ पे एक डॉक्टर बोल रहा है या डॉक्टर सोच रहा है कि जो डॉक्टर हैं वो ओथ लेते हैं अपने पेशेंट्स को बचाने की किसी भी कॉज में. वो उनको जो है किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन या नेशनैलिटी से ऊपर उठकर एक पेशेंट की जान बचाना जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है. ये ओथ दिलाई जाती है. यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हैना सेड. देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस. बट द सर्वेंट, सदाव इंक्वायर्ड. अब वो क्योंकि एनिमी है, डॉक्टर सदाव जो है सर्वेंट्स के लिए भी वरिड है. और हैना कहती है कि अगर हम उसे पानी में नहीं फेंक रहे तो इसको घर लेकर चलते हैं, लेट अस टेक हिम होम. बट सदाव सर्वेंट्स को लेकर कंसर्न है, क्योंकि सर्वेंट जो है वो इस बात को एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि उसके सर्वेंट जो है वो अपनी कंट्री से बहुत लॉयल है और एक वाइट मैन को एकोमोडेट करना घर में जो है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा dangerous होगा. We must simply tell them that we intend to give him to the police, as indeed we must, सदाव. और हैना कहती है कि हम उन्हें समझा देंगे कि इसको हम जो है पुलिस को देने वाले हैं और इंडीड हमें देना ही है ऐसे पुलिस में. वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन. इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. और हमें तुम्हारी पोजीशन के बारे में भी सोचना चाहिए, बच्चों की सेफ्टी और उनके लिए भी सोचना चाहिए कि तुम्हारा नाम ख़राब ना हो, तुम्हारी पोजीशन ख़राब ना हो. और पानी में जो है इसको डाल नहीं सकते क्योंकि ये पेशेंट है, बट इसको ठीक करने के बाद एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर हम डेफिनेटली इसको जो है गवर्नमेंट को दे देंगे. सर्टेनली, सदाव एग्रीड. और सदाव इस बात से एग्री कर रहा है. एंड आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स. और मैं ऑब्वियसली ये तो हमारे लिए एनिमी है और मैं और कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ इसके लिए कुछ करने के लिए. दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन. ही वॉज वेरी लाइट, लाइक अ फाउल दैट हैड बिन हाफ स्टार्व्ड for a long time until it is only feathers and skeleton. So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. This door opened into a passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom.
It had been the bedroom of Saddao's father, and since his death is it had since his death it had not been used. They laid the man on the deeply matted floor. Everything here had been Japanese, to please the old man, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. Henna went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure वाइट सिल्क. अब दोनों जो है उसको उठाकर अंदर की तरफ लेकर गए और घर की तरफ जो लेकर जा रहे थे तो फिगर आउट कर पा रहे थे कि बहुत ही लाइट है, बिल्कुल फेदर की तरह है, स्केलेटन है, क्योंकि बहुत टाइम से वो प्रिजन में होगा और उसको अच्छे से ना खाने को मिला होगा, तो इसीलिए सिर्फ उसकी बॉडी पे जो है स्केलेटन की तरह सिर्फ बोन्स ही बोन्स रह गई हैं, फ्लैश है ही नहीं. और वो अपने फादर के रूम में लेकर गए और वो रूम उन्होंने जब से उसके फादर की डेथ हुई थी वो रूम खोला नहीं था और उस दिन उस प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए खोला गया. और वो रूम जो है बिल्कुल ओल्ड जापनीज़ स्टाइल में ही डिज़ाइन था और उसके इंटीरियर टोटली जापनीज़ स्टाइल में ही थे, क्योंकि उसके फादर जो है बहुत ही ज़्यादा पैट्रियाटिक थे और अपने कल्चर को बहुत रिगार्ड करते थे. ही नेवर यूज्ड टू लाइक sit on a chair or sleep in a foreign bed. Henna went to the wall cupboards and और Henna ने जो है एक सिल्क शीट निकाली, क्विल्ट निकाली उस prisoner of war के लिए. He is so dirty, she murmured in distress. और वो क्विल्ट जो है वो बहुत ही सुंदर थी, फ्लारी थी, वाइट सिल्क थी और उसकी वो जो क्विल्ट है ख़राब ना हो जाए तो उसका ध्यान फिर इस बात पे जाता है कि ये तो बहुत ही डर्टी है. येस ही हैड बेटर ही वॉश्ड. और सद्दाव कहते हैं हाँ डर्टी तो है और इसको हमें धोना चाहिए, एंड इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम. और वो कहती है कि ठीक है थोड़ा सा गर्म पानी ले आओ तो मैं इसे वॉश कर देता हूँ. और हैना कहती है नो आई कैन नॉट बेयर for you to touch him, she said. We shall have to tell the servants he is here. I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can वॉश हिम. अब वो कहती है कि नहीं तुम नहीं धोगे, इसे यूमी धोएगी जो कि उनकी सर्वेंट है और बच्चों का ध्यान रख रही है, थोड़ी देर के लिए वो ये काम कर सकती है. सदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट. लेट इट बी सो. ठीक है सदाव कहता है फिर ऐसा ही करो. शी एंड ही एग्रीड. यू टेल यूमी एंड आई टेल द अदर्स. और कहते हैं तुम यूमी को बताओ और मैं बाकी सर्वेंट्स को बता कर आता हूँ इस प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में. But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. और ये करने से पहले जो है वो उसका बुझा हुआ और पेल चेहरा देखकर वो उसकी पल्स को चेक करना चाह रहा था कि वो ज़िंदा है और उसकी पल्स रेट ठीक है. It was faint, but it was there. Faint थी, but वो थी. He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. तो पल्स भी चल रही थी और दिल भी धड़क रहा था. He will die unless he is operated on, Saddaw said, considering the question is whether he will not die anyway. और जब वो उसे टच करके देख रहा है तो उसे लग रहा है कि अगर मैं इसको ऑपरेशन नहीं करता हूँ, इसकी सर्जरी नहीं करता हूँ तो ये मर जाएगा. फिर अपने आप से एक क्वेश्चन कर रहा है तो अगर मैं ऑपरेशन कर भी दूँगा तो क्या ये वैसे भी नहीं मर जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही वीक है, या तो ऑपरेशन से मर जाएगा, अगर बच गया तो उसको तो वैसे ही मरना है क्योंकि वो गवर्नमेंट को दे देंगे, सरकार को दे देंगे prisoner of war को. Henna cried out in fear, don't try to save him. What if he would live? He should live. What if he should die? Saddaw replied. वो कहते हैं कि तुम इसे बचाओ मत. हैना बोलती है कि क्या पता अगर ये जिंदा रह गया तो तुम सर्जरी मत करो, बट लेकिन अगर ये मर गया तो. Saddaw replied, and he stood gazing down on the motionless man. This man must have extraordinary vitality, or he would have been dead by now. But then he was very young, perhaps not yet 25. You mean die from the operation? Henna asked. Yes, Saddaw said. और वो मोशनलेस मैन की तरफ देख रहे हैं और वो ये समझ पा रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी है इस यंग मैन में कि वो बच गया इतनी ज़्यादा चोट के बाद भी, गोली लगने के बाद भी,
और सी के पत्थरों के बाद भी वो अभी तक ज़िंदा है प्रिजनर ऑफ वॉर। तो ये चीज़ जो है उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइटलिटी को शो करती है उस यंग मैन की, और वो 25 ईयर्स का लग रहा था। और वो पुरानी बात उसकी दोहराती है कि मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि ऑपरेशन में मर जाएगा। सदाव कहता है हाँ। हैना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, क्योंकि उसको अपने हस्बैंड की सर्जरी स्किल्स पे भरोसा था, तो उसे डेफिनेटली वो इस बात को डाउटफुली ले रही थी कि ऐसा हो नहीं सकता कि मर जाए। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे। At any rate, something must be done with him, he said, and first he must be washed. He went quickly out of the room, and Henna came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with him, with those whom she had known there. Here he was her enemy, a menace, लिविंग और डेड। और हैना जो है वो डाउटफुल है कि उसके हस्बैंड जो है वो बहुत ही अच्छे सर्जन है और वो मरेगा नहीं। और अगर वो अपनी कंसर्न की बात करें अमेरिकन को लेकर, तो वो जो पिछले सारे दोस्त थे, जो जितने भी वाइट मैन के साथ उनका रिलेशनशिप रहा या वो जानकार रहे, अब वो वहीं पर ही अपने उन रिलेशनशिप्स को या अपने उस बॉन्ड को वहीं छोड़ आए हैं। और उनके लिए अब अपनी कंट्री जापान ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उनके लिए ये प्रिजनर ऑफ वॉर उनका एनिमी है, मिनेस है, चाहे वो लिविंग फॉर्म में है चाहे वो डेड फॉर्म में है। दोनों ही केसेस में ये खतरा है और वो डेंजरस है अमेरिकन उनके लिए। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, but the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, Yumi, कम विद मी। और वो यूमी को बुला रही है और बच्चों का ध्यान रख रही है यूमी, और उसके बच्चे जो है वहाँ पे खेल रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, इस बात से अनजान के उनके घर में जो है कोई वाइट मैन है। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, ही इज़ रेडी। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. और यूमी जो है बोल रही है कि बस ये सोने ही वाले हैं, तो उसको बहुत ही कंफर्टेबली जो है सुलाने की कोशिश कर रही है, और क्विल्ट भी स्प्रेड कर ली है ताकि वो बहुत ही ज़्यादा कोजी होकर आराम से बॉय सो सके। देन हैना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड at what their master had just told them. और जब वो बाहर की तरफ जाती है तो बाकी सर्वेंट जो हैं बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर सदाव ने उनको शायद उस वाइट मैन या प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में बता दिया था। द ओल्ड गार्डनर, who was also a house servant, pulled the few hairs on his upper lip. The master ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Henna. The white man ought to die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rocks, and if the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. I will tell him what you say, Henna replied courteously. But he herself was also frightened. वो जो सर्वेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है और डरे हुए हैं, और हैना से बोल रहे हैं कि मास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे नहीं अपने घर में रखना चाहिए, उसे नहीं बचाना चाहिए, ये इस वाइट मैन को तो मरना ही चाहिए, क्योंकि इसको पहले गन ने मारा, फिर सी के पत्थरों ने मारा, और अगर मास्टर इसे हील करेंगे तो वो दोनों ही गन और सी के पत्थर रिवेंज लेंगे। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हैना कह रही है जो तुम सोचते हो ये मैं डॉक्टर सदाव को बता दूंगी, और बहुत ही कर्टियसली वो उसको जवाब देती है अपने सर्वेंट को। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, और अंदर से हैना खुद भी डरी हुई है। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, बट वो सुपरस्टिशियस नहीं थी, बट स्टिल इस बात से डरी है क्योंकि वो प्रिजनर ऑफ वॉर है, वो और अपने घर में उसे अकोमोडेट कर रहे हैं। कुड इट एवर बी
well to help an enemy. Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. और इस बात को आगे बढ़ाते हुए वो यूमी को पानी लाने की बात कर रही है और वाइट मैन को जो है वो क्लीन करने की बात कर रही है. एंड शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशन. सदाओ वॉज नॉट येट देयर. यूमी फॉलोइंग put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. अब यूमी जो है जब वो उस वाइट मैन को देखती है तो बहुत ही स्टबन होकर जो है वो देख रही है विद फोल्डेड आर्म्स जो है वो वाइट मैन की तरफ जो है उसका ध्यान जा रहा है. आई हैव वो कह रहे कि नहीं मैंने कभी भी वाइट मैन को वॉश नहीं किया है. एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी वन नाउ. और वैसे भी मैंने कभी किसी वाइट मैन को वॉश नहीं किया और ये तो बहुत ही डर्टी है, इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, अब भी नहीं करूँगी. हैना क्राइड एट हर सिवियरली. यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू. और वो कह रहे कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा मास्टर तुम्हें कमांड कर रहा है. और गुस्से में बोलती है हैना. There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid. और यूमी के चेहरे पे इतना गुस्सा था, इतना रेजिस्टेंस था और उसको देखकर हैना खुद भी जो है डर गई कि उसको आगे और कुछ नहीं बोल पाई. आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपेंड. और वो डर रही थी अंदर से कि कहीं ये बाहर जाकर पुलिस को रिपोर्ट ना कर दे, जो कि सच बात तो अभी इसको पूरी तरीके से मालूम भी नहीं है कि हमारा उस स्ट्रेंजर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है और कहीं ये कुछ इस तरीके की बात बाहर जाकर ना कह दे. इस ये डर जो है हैना को उस मोमेंट पे फील हुआ. वेरी वेल, शी सेड with dignity. You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. I will have nothing to do with it, Yumi said. I am a poor person and it is not my business. अब वो कह रही है ना, उसको जस्टिफिकेशन दे रही है, हम इसे जो है पुलिस को दे देंगे जब ये अपने सेंसेस में आ जाएगा. तो यूमी कह रही है मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है और ये मेरा इस बात में इंटरफेरेंस भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तुम्हारा घर है, तुम जो मर्जी आए करो क्योंकि तुम मालिक हो. उसका मतलब यही था. Then please, Hannah said gently, return to your own work. तो ठीक है, तुम अपना जो काम कर रही थी तुम वही काम जाकर करो. At once Yumi left the room, but this left Hannah with the white man alone. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. और वो खुद भी बहुत कंफर्टेबल नहीं थी उस वाइट मैन के साथ, बट वो यूमी बिल्कुल स्टबन हो गई थी. उसने बिल्कुल मना कर दिया था उस वाइट मैन को वॉश करने से, तो उसके पास चॉइस नहीं थी, नहीं तो वो भी बहुत ही कंफर्टेबल नहीं थी उस वाइट मैन के साथ उस कमरे में. स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन. और उसको गुस्सा आ रहा है और अपने आप से ही बात कर रही है और यूमी को वो स्टूपिड कह रही है और वो कह रहे हैं कि इसमें क्या है, एक आदमी तो है और वो भी चोट खाया हुआ आदमी. इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियॉरिटी she bent impulsively and untied the knotted drugs that kept the white man covered. और वो धीरे धीरे जो वाइट मैन है उसको क्लीन करने की कोशिश कर रही है उस हॉट वाटर से. एंड व्हेन शी had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. The man's skin, though rough with exposure, was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. और वो साफ़ करते करते देख रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन है उस वाइट मैन का और वो सोच रहे कि बचपन में और भी गोरा रहा होगा. While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. और वो धीरे धीरे उसको साफ़ कर रही है और वो समझ रही है कि ये बच्चा नहीं है अभी, but she dared not turn him over where was सद्दाव. और मन में सोच रही है कि कहाँ रह गया सद्दाव. Now her anger was ebbing
एंड शी वॉज एंक्शियस अगैन। अब फिर वापस वो साफ़ करते करते जो उसके ध्यान जो है उस वाइट मैन की तरफ गया, फिर वापस उसका ध्यान सदाओ की तरफ गया, तो अब फिर वापस उसे गुस्सा चढ़ने लगा और वो एंक्शियस होने लगी कि कहाँ रह गया है। एंड शी रोज़ वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉल एंड देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। और उसको समझ में आ गया कि जैसे वो क्लीन तो करी है लेकिन उसको ठंड लग रही होगी उस प्रिजनर ऑफ वॉर को, और उसने बहुत ही सॉफ्टली सदाओ को आवाज़ मारी और इतनी देर में स्ट्रेंजर को भी साइमल्टेनियसली क्विल्ट से कवर अप कर दिया। ही हैड बिन अबाउट टू कम इन बेन शी कॉल्ड, हिज हैंड had been on the door and now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. और डॉक्टर सदाओ जो है वो बिल्कुल रेडी होकर आ गया था सर्जन कोट पहनकर और अपने पूरी तैयारी के साथ उसकी सर्जरी करने के लिए। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। और उसको लग रहा है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम इसे ऑपरेट करोगे? येस, ही सेड शॉर्टली। ही टर्न्ड हिज बैक to her and unfolded the sterilized towel over the floor of the tokonoma alcove and put his instruments out upon it. और अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो धीरे धीरे निकालने लगा डॉक्टर सदाओ। और उसने ये डिसीजन ले लिया था कि वो सर्जरी करेगा। शी वेंट obediently but now anxious now to the linen shelves and took out the towels. There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. और वो बहुत ही ज़्यादा वो पर्टिकुलर थी अपने घर को लेकर, उसकी क्लिनलीनेस को लेकर, और वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर है पूरा ब्लीड कर रहा था, तो इस वजह से उनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई थी, मैट, बेडशीट, क्विल्ट इवन। And she went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which she wished to protect the delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से वो डर्टी होने से बचा ले। But when she went back into the room, she saw this was useless. The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. और उसके लिए ये प्रिकॉशनरी मेजर भी जो है वो यूजलेस था क्योंकि वो मैट जो है वो ख़राब हो चुका था। ओह द मैट, शी क्राइड। येस इट इज़ ruined, सदाओ रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर। हेल्प मी टू पुट हिम, ही कमांडेड हर। अब वो कमांड करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान जो है उसकी सर्जरी में है। एंड शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड। और है ना, बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट वाइफ है, बहुत ही लविंग है, अफेक्शनेट है और अपने हस्बैंड का बहुत रिगार्ड करती है, और वो चुपचाप ओबे करने लगी जो भी डॉक्टर सदाओ बोल रहा था। शी ओबेड हिम without a word and he began to wash the man's back carefully. Yumi would not wash him, she said. And did you wash him then? और बता रही है साथ साथ जो भी दोनों उस रूम में हैं तो कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हैं, और बता रही कि यूमी ने जो है इसको मना कर दिया वॉश करने से। तो डॉक्टर सदाओ कह रहे हैं कि तुमने इसको वॉश किया फिर। और अब उसके हाथ जो है वो अपना जो है एक सर्जन का जो काम है वो साथ साथ करता चला जा रहा है इस कन्वर्सेशन के दौरान। And yes, she said. He did not seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. और उसको समझ आ रहा था कि डॉक्टर सदाओ उसकी बात को नहीं ध्यान दे रहा है, और वो इस बात की आदी भी थी क्योंकि जब डॉक्टर सदाओ अपना काम करते हैं तो उनका पूरा कंसंट्रेशन अपने काम पर होता है। और इसके बाद हम इसका अगला पार्ट जो है नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे।